Good evening, great friends. Today I am sharing with you some information about Shakespeare's great poem, The Rape of Lucrece. The Rape of Lucrece was written in 1594. It is the second published poem of William Shakespeare. The poem is written in 7-line stanzas. It means it is written rhyme royal. Its rhyming scheme is A B A B B C C. The poem is based on Ovid's Fasti and another source is Levy's History of Rome. Levy's History of Rome. Now we find there are three characters in this poem because the poem is narrative. The first is Lucrece, the second is the Prince of Rome called Tarquin, the third is Collatine. Lucrece was the wife of Collatine and Collatine was the friend of Tarquin. One day, in the absence of Collatine, Tarquin reached the home of Lucrece. Lucrece welcomed him, did everything what a royal guest should find from a host. Everything was right, but when the night fell and Tarquin was staying there, he was dazzled in the vision of Lucrece. She saw the dazzling beauty of Lucrece and therefore his intentions became very sinful. He wanted to rape her. Lucrece also understood the dirty intentions of Tarquin. She tried her best to convince him and prevent him from doing all this, but he was not ready to listen to him. She reminded him that he was the Prince of Rome and if he raped her, it would spoil the history of Roman kings, the royal generation of the kings. She also told that she was the wife of his friend and therefore it was unsuitable, unlawful or sinful to cheat with his friend. But he ignored her appeals and he was prone to rape her. She felt much miserable, much disheartened, and Tarquin very shamelessly, very brutally raped her. In the morning, when her husband returned and Tarquin went away, Lucrece told the whole story, and her husband Collatine became much sad, much disheartened, distracted. When the Roman public came to know, it also became out of control. And here Lucrece committed suicide. Lucrece committed suicide. Now the Roman citizens stood against the Roman Empire and the consequence was very horrible. Tarquin and his parents had to leave Rome. So this is the theme of the rape of Lucrece. Means Tarquin raped Lucrece. Lucrece was the wife of his friend Collatine and he entered her home while his friend was absent. Such a tragic tale told by William Shakespeare is based on the history of Rome. It is a realistic story. It is a Roman poem. Now come in your Hindi version. तो रेप ऑफ लुक्रेसी जो पोएम है सन 1594 में लिखी गई थी. रेप ऑफ लुक्रेसी ओविड के फास्टी पे आधारित है. द रेप ऑफ लुक्रेसी का दूसरा सोर्स है लिवी की हिस्ट्री ऑफ रोम. ये 7-line स्टेंजाज में लिखी गई है, यानी कि राइम रॉयल में लिखी गई है और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी. और स्टोरी ये है इसमें कि टार्किन जो है लुक्रेसी के घर जाता है जब उसका हस्बैंड कोलेटाइन एब्सेंट था. कोलेटाइन और टार्किन दोनों फ्रेंड थे तो वो पहले से ही उसे जानती थी. वो उनके घर गया, उसकी ब्यूटी की तारीफ की और उसके बाद में अपनी इच्छा जाहिर की वो आज यहीं रुकना चाहता है. लुक्रेसी ने कहा कोई बात नहीं, आप रुकिए, आपका स्वागत है. और फिर क्या होता है, जब रात गुजरी
तो टार्किन के मन में हैवानियत सवार हो गई और टार्किन लुक्रीसी के रूम में जाता है। लुक्रीसी उससे गिड़गिड़ाती है, अपनी इज्जत की भीख मांगती है और बताती है कि अगर आप कुछ मेरे साथ गलत करेंगे तो रोमन एम्पायर का ही इतिहास काला हो जाएगा। वो कहती मैं तुम्हारे मित्र की पत्नी हूँ और आपको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि आप एक रॉयल ब्लड के हैं और रॉयल ब्लड के व्यक्ति को किसी कॉमन स्त्री के साथ ऐसा कुछ गलत कार्य नहीं करना चाहिए। उसने बहुत से तर्क दिए, लेकिन इसके सर पे हैवानियत सवार थी। इसका कहना था कि भोजन की थाली सामने हो और वो व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो थाली को छोड़ देता है, मतलब वैसी और दरिंदा बन जाता है और इन कॉन्सिक्वेंस उसके साथ दुष्कर्म करता है। जब प्रातः होती है तो टार्किन तो चला जाता है, लुक्रीसी बदहवास होती है। रोम के लोगों को जब ये पता चला और उसके हस्बैंड को जब ये पता चला तो बहुत ही आक्रोश फैल गया। लेकिन इसके पहले कि कुछ आगे होता है, लुक्रीसी ने सुसाइड कर ली। जब रोम की जनता को ये पता चला कि लुक्रीसी ने सुसाइड कर ली है तो राजा के अगेंस्ट, राजघराने के अगेंस्ट सारी जनता खड़ी हो गई और राजा के बच्चे, राजा के बेटे टार्किन को मारने के लिए सारी जनता खड़ी हो गई। जब राजा और उसके परिवार ने ये जाना तो वो रोम को छोड़ करके भाग गए थे। तो ये एक रोमन हिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें ये रियल घटना होती है और जनता ने इतना बड़ा विरोध किया इस दुष्कर्म का कि राजा को अपनी गद्दी छोड़ करके, रोम छोड़ करके भागना पड़ा था। तो ये रेप ऑफ लुक्रीसी की जनरल थीम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। और दूसरे ये रियलिस्टिक है, ट्रेजिक है, पैथेटिक है, नैरेटिव है। रेप ऑफ लुक्रीसी के एपिग्राफ में विलियम शेक्सपियर ने लिखा था कि द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड, व्हाट आई हैव डन इज योर्स, व्हाट आई हैव टू डू इज योर्स। एक्चुअली जैसे वीनस एंड एडोनिस हेनरी रायथसले को डेडिकेटेड की गई थी, उसी प्रकार से ये पोएम भी द रेप ऑफ लुक्रीसी भी हेनरी रायथसले यानी थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या बैरन ऑफ टिचफील्ड कह सकते हो, इनको डेडिकेटेड की गई थी। और इसमें ये जान लीजिए कि 265 स्टेंजाज हैं और 1855 लाइन है। कहने के मतलब ये पोएम वीनस एंड एडोनिस से भी बड़ी है, क्योंकि वीनस एंड एडोनिस में 199 स्टेंजाज हैं और 1194 लाइन्स हैं, और रेप ऑफ लुक्रीसी में 265 स्टेंजाज, वो भी 7 लाइन वाली स्टेंजाज यानी राइम रॉयल में हैं, और 1855 लाइन्स हैं। अब मैं रेप ऑफ लुक्रीसी के कुछ फेमस कोट्स बता रहा हूँ आपको। व्हाट विन आई इफ आई गेन द थिंग आई सीक, वो जीत ही क्या जो चीज मैं चाहता हूँ पा जाऊं। मतलब चीज जो चाहता हूँ वो मिल जाए तो वो मिलना नहीं हुआ। एक कोटेशन, ब्यूटी इट सेल्फ डथ ऑफ इट सेल्फ परस्योड द एज ऑफ मैन विदाउट ओरेटर। ब्यूटी खुद परस्योड करती है, ब्यूटी खुद व्यक्ति को राजी कर लेती है, मना लेती है, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वक्ता के। ब्यूटी अपना पक्ष खुद रख देती है, यानी चिल्ला करके बोलती है। ब्यूटी की तरफ व्यक्ति ऑटोमेटिक आकर्षित होता है। एक ये कोटेशन है, व्हाई शुड द प्राइवेट प्लेजर ऑफ समवन बिकम द पब्लिक प्लेग ऑफ मेनी मोर, कि मतलब व्यक्ति के प्राइवेट प्लेजर के लिए पब्लिक प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो। एक ये कोटेशन है, लेट फेयर ह्यूमैनिटी अभर द डीड द स्पॉट्स एंड स्टेन्स लव्स मॉडेस्ट स्नो व्हाइट वीट, यानी सारी ह्यूमैनिटी इस घृणित कार्य की भर्त्सना करे, बुराई करे। और एक ये तर्क देता है टार्किन, देयर इज नो हेट इन लविंग, प्यार करने में कोई हेट नहीं होनी चाहिए। जब वो कहती है कि आप अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचो, आप अपनी स्टेटस के बारे में सोचो, तब वो क्या कहता है, रिस्पेक्ट एंड रीजन वेट ऑन रिंकल्ड एज। ये रिस्पेक्ट और ब्रेन, तर्क, ये सब बुढ़ापे की चीजें हैं।
जवानी में सम्मान नहीं देखा जाता है, जवानी के जोश के आगे सम्मान का कोई महत्व नहीं होता है। इफ एक ये कोटेशन, इफ एवर मैन वर मूव्ड विथ वुमन्स मोन्स बी मूव्ड विथ माई टीयर्स, अगर महिला यदि किसी महिला के दर्द से, दुख से, आहों से कोई व्यक्ति कभी पिघला हो तो आप पिघल जाइए। एक ये कोटेशन है, फॉर किंग्स लाइक गॉड्स शुड गवर्न एवरीथिंग। वो कहता राजा तो गॉड की तरह होते हैं, जो चाहें वो करें, हर चीज को गवर्न कर सकते हैं। एक ये कोटेशन है कि द पेशेंट डाइज व्हाइल द फिजिशियन स्लीप्स, जब डॉक्टर सोता है तो मरीज मर जाता है। द ऑर्फन पाइंस व्हाइल द ऑपरेसर फीड्स, जब अत्याचारी अपने कदम बढ़ाता तो आर्फन जो होता है, असहाय अनाथ, वो दर्द से करा उठता है। एक ये फेमस कोटेशन, ओ टाइम दाउ ट्यूटर बोथ टू गुड एंड बैड, समय गुड और बैड हर चीज का ट्यूटर है, हर चीज सिखा देता है। ही 10 times पाइंस दैट पाइंस beholding फूड, वो 10 गुना तड़पता है जो भोजन देख करके भी भूखा रहता है। भोजन न देखो तो उतनी भूख नहीं लगती है, भोजन देख करके अगर जो व्यक्ति भूखा है उसे भूख और बढ़ जाती है। फॉर मेन हैव मार्बल वीमेन वैक्स इन माइंड्स, मैन का माइंड होता है पत्थर का, उनके अंदर एक तरीके से मर्सी नहीं होती, पीटी नहीं होती है। और महिलाओं का हार्ट होता है, माइंड होता है मोम का, बहुत जल्दी दुखी होती हैं। तो वो कहता है कि हमें कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। एक कोटेशन है, फॉर मेन कैन कवर क्राइम्स विद बोल्ड स्टर्न लुक्स, पुअर वीमेन्स फेसेस आर देयर ओन फॉल्ट बुक्स। देखिए, पुरुष लोग कहता है कि अपनी बोल्ड लुक के पीछे अपने क्राइम से छुपा लेते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो स्वांग नहीं कर पाती हैं, वो ऑस्टेंटेशन नहीं कर पाती हैं, वो दिखावा नहीं कर पाती हैं, वो इमोशनल है, दुखी हैं तो वो दिखेगा। मेन्स फॉल्स डू सेल्डम टू देमसेल्व्स अपीयर, ये बहुत फेमस कोटेशन है। मनुष्य की अपनी गलती कभी गलती ही नहीं लगती है। मेन्स फॉल्ट्स डू सेल्डम टू देमसेल्व्स अपीयर, मनुष्य की गलती खुद को शायद ही कभी लगे। तो ये फेमस कोटेशंस हैं द रेप ऑफ लुक्रेसी में। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव पर्पज। द रेप ऑफ लुक्रेसी 1594 में। द रेप ऑफ लुक्रेसी वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी राइथसले, द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। द रेप ऑफ लुक्रेसी इज रिटन इन राइम रॉयल, मीन्स 7 line stanzas. The Rape of Lucrece has 265 stanzas and 1855 lines. The Rape of Lucrece is based on the Roman history. The source of Rape of Lucrece is Ovid's Fasti and Livy's History of Rome. The Rape of Lucrece is a narrative poem. The rhyming scheme of the Rape of Lucrece is AB, AB, BCC. And the first important thing about this poem, it is the second published poem of William Shakespeare. And you should also know that he dedicated this poem to his friend Henry Wriothesley in HW, and while he was dedicating this poem, he composed an epigraph. उन्होंने एक एपिग्राफ लिखा था पोएम के पहले कुछ लाइंस, प्रोज लाइंस। उसमें क्या लिखा था कि द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड, व्हाट आई हैव डन इज योर्स, व्हाट आई हैव टू डू इज योर्स। जो मैंने सब किया है वो आपका है, और जो मैं करूंगा सब आपका है। यानी ये चमक, ये धमक, समझे, ये सब आपकी ही है। तो हेनरी राइथसले को बहुत ही हम्बली, बहुत ही जेन्युइनली वो डेडिकेट करते हैं अपनी पोएम्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिपिंग।
and I would expect you to share with the maximum number of your friends so that I may feel myself satisfied with my attempts, and the people, the learners should also get some information. This is a poem by William Shakespeare and may help very useful to all those who are interested in ancient literature. Thank you once again.